Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. So, today we are here with the third lecture of matrices. In the previous lectures, we started with the basic algebra of matrices and we discussed some of their applications too. In this lecture, we'll continue the basic algebra of matrices and we'll study about the matrix multiplication, the commutator bracket, some of the operations which we perform on matrices to give a new matrix which is known as derived matrix. So, in the previous lecture, we started with the matrix multiplication and we discussed the condition which the product matrix should satisfy and some of the problems we also discussed. Now, in this lecture, based on the concepts we discussed in the previous lecture, we'll solve some of the problems and then we'll move towards the commutator bracket, anti-commutator bracket, some of the operations like transposition operation, complex conjugation, Hermitian conjugation, trace of a square matrix, etc. So, without further delay, let's get started. Before discussing the problems, let's recall the conditions which we understood in the previous lecture for the addition of matrices and their multiplication. So first of all, if we have two matrices A and B, then the sum of these two matrices, that means A plus B, is defined only when these matrices are comparable. That means the order of A and order of B should be same. And next thing, for matrix multiplication, what we discussed was if we have two matrices like A and B, and let A have the order n cross n and B have the order p cross q, then the product AB will be defined if the number of columns of prefactor A, that means n, is equal to the number of rows of post factor B. That means if n is equal to p, then only this product AB will be defined. This was what we did in the previous lecture. Now, based upon these conditions, let us discuss some of the problems. So, the first problem of today is we have two matrices A and B such that A plus B is given to be defined and AB is also defined. Then we have to find out what type of matrices are A and B and what are their orders. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि A का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड B का ऑर्डर है p क्रॉस q. फर्स्ट थिंग, हम लोग A और B का ऑर्डर डिफरेंट मान के चलेंगे बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट मैट्रिसेस. नाउ लेट्स टेक अप द फर्स्ट कंडीशन. जो फर्स्ट कंडीशन हमें दी है वो ये है कि A प्लस B इज डिफाइंड. अब दो मैट्रिसेस का जो एडिशन है वो तब डिफाइंड होगा अगर दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल होंगी, यानी कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे. It means the order of A should be equal to order of B because the sum A plus B is defined. तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आई कि number of rows of A is equal to number of rows of B and the number of columns of A is equal to number of columns of B. M is equal to P and N is equal to Q. अब P और Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इस टर्म्स में B का जो ऑर्डर होगा वो क्या बन गया, M क्रॉस N, because P was equal to M and Q is equal to N from the first condition which we have given. अब नेक्स्ट कंडीशन हमें जो दी गई है वो ये है AB is also defined. That means कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफाइंड है. अब प्रोडक्ट AB की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट AB में A is the प्री फैक्टर एंड B is the पोस्ट फैक्टर. तो प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं हम एंड पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज. ये दोनों अगर इक्वल हुई देन दिस प्रोडक्ट विल बी डिफाइंड. बिकॉज AB इज गिवन टू बी डिफाइंड, इसका मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B. अब A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है n एंड द नंबर ऑफ रोज इन B आर P. तो यहाँ से हमारे पास आया कि n इज इक्वल टू P. ऑर्डर ऑफ A हमने सपोज किया था दैट वाज m क्रॉस n. ऑर्डर ऑफ B हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर ऑफ B क्या आया, m क्रॉस n एंड AB इज डिफाइंड. इस कंडीशन से हमने ये इंटरप्रेट किया कि n P के इक्वल है. यहाँ से ये जो कंडीशन हमारे पास आई m इज इक्वल टू P एंड n इज इक्वल टू Q, ये दो कंडीशंस भी हमारे पास थी. तो जो भी हमें गिवन था वहां से हमने ये इंटरप्रेट किया कि n
और m ये दोनों ही p के इक्वल हैं। अगर n और m दोनों p के इक्वल हैं, दिस मीन्स कि n एंड m बोथ आर इक्वल। तो n m के इक्वल है, तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारे पास a का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा n क्रॉस n एंड b का जो ऑर्डर आएगा वो भी n क्रॉस n होगा। तो यहाँ से हमने a और b दोनों के ऑर्डर्स फाइंड आउट कर लिए। ये पार्ट जो ऑर्डर वाला पार्ट था वो हमारा ओवर हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि a किस टाइप की मैट्रिक्स है। अब A मैट्रिक्स में हम ये देख रहे हैं कॉलम्स इन A एंड नंबर ऑफ रोज इन A दोनों n है, एंड इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, दैट इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर A मैट्रिक्स जो हुई वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनी। सिमिलरली अगर हम B की बात करें, B में भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, दैट मीन्स कि B इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ से जो ऑर्डर आया A और B का वो आया n क्रॉस n, and we get that A and B both are square matrices. तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। तो द सेकंड प्रॉब्लम इज, यहाँ पर हमें A और B दो मैट्रिसेस डिफाइन कर रखी हैं और ये कह रखा है कि AB एंड B दोनों प्रोडक्ट्स डिफाइंड है, एंड A का ऑर्डर हमें गिवन है, A का ऑर्डर है m क्रॉस n। तो मुझे B का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर A का ऑर्डर हमें गिवन है, ऑर्डर ऑफ A इज m क्रॉस n, ठीक है, एंड हमें B का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि B के ऑर्डर को सपोज कर लेंगे। लेट्स से B का ऑर्डर है p क्रॉस q। अब फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, एक एक कंडीशन ली थी, उसको इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स निकाले एंड उन रिजल्ट से हमने फाइनल सॉल्यूशन निकाला। बिल्कुल सेम इस केस में भी करेंगे, जो भी कंडीशंस हमें गिवन है उनको इंटरप्रेट करके कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे एंड उन रिजल्ट से हम फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो है AB इज डिफाइंड। AB यानी कि प्रोडक्ट डिफाइंड है। अगर प्रोडक्ट AB डिफाइंड है तो दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इन द फर्स्ट मैट्रिक्स A should be equal to the number of rows in the second matrix B, because अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी then only the product AB will be defined. तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है n, एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ B का ऑर्डर हमने p क्रॉस q सपोज किया था, तो नंबर ऑफ रोज इन B आर p। तो यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू p की कंडीशन आ गई। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कंडीशन इज BA इज डिफाइंड। यहाँ पर हमें BA डिफाइंड दे रखा है। अब BA कब डिफाइंड होगा? BA के केस में जो प्री फैक्टर है दैट इज B एंड A इज द पोस्ट फैक्टर इन दिस केस। तो प्री फैक्टर के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B कितने हैं? बिकॉज B का ऑर्डर हमने p क्रॉस q सपोज किया था, तो P का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए वो हो गई q, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज इन A का ऑर्डर हमें m क्रॉस n दे रखा है, तो नंबर ऑफ रोज इन A आर m। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आई q इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आई, n इज इक्वल टू p एंड q इज इक्वल टू m। B का ऑर्डर हमने सपोज किया था दैट वाज p क्रॉस q। P का ऑर्डर ही हमें फाइंड आउट करना है। P की वैल्यू हमें पता चल गई n, तो ऑर्डर ऑफ B बिकम्स n क्रॉस q की वैल्यू है m। तो यहाँ से फ्रॉम द गिवन कंडीशंस AB एंड B इज डिफाइंड, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो B का ऑर्डर है दैट इज n क्रॉस m। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव थ्री मैट्रिसेस Y, W एंड P। Y, W एंड P तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन है और हमें N, P और K पे रिस्ट्रिक्शंस फाइंड आउट करनी है सो दैट कि PY प्लस WY मैट्रिक्स डिफाइंड हो। तो हमें N, P और K की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस केस में। यहाँ पर Y का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस K, W का ऑर्डर है N क्रॉस 3 एंड P का ऑर्डर है P क्रॉस K। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, PY प्लस WY इज डिफाइंड। तो इसी कंडीशन का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर PY प्लस WY डिफाइंड है, यानी कि दो मैट्रिसेस का एडिशन डिफाइंड है। दो मैट्रिसेस का एडिशन तब भी डिफाइंड होगा अगर ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल होंगी, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं
पी वाई को लेट्स से इट इज द मैट्रिक्स सी एंड डब्ल्यू वाई को मैं मैट्रिक्स डी मान लूं, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हमारे पास क्या बना, दिस बिकम्स सी प्लस डी. नाउ बिकॉज सी प्लस डी इज डिफाइंड, दैट मीन्स कि सी का जो भी ऑर्डर होगा दैट शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी. बिकॉज ये दोनों कंपेरेबल होंगे देन ओनली सी प्लस डी इज डिफाइंड. तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ गई, पी वाई हमने सपोज की थी एंड d वॉज इक्वल टू डब्ल्यू वाई. तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि पी वाई एंड डब्ल्यू वाई का जो भी ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल बिकॉज पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड. नाउ नेक्स्ट थिंग हेयर, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने जो भी यूज किया उसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. टू प्रोडक्ट्स आर देयर, पी वाई एंड डब्ल्यू वाई. पी वाई भी डिफाइंड है, डब्ल्यू वाई भी डिफाइंड है, दोनों डिफाइंड है, दोनों की कंडीशंस चेक करेंगे एंड देन दोनों के ऑर्डर्स फाइंड आउट करेंगे. तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा. बिकॉज पी वाई इज डिफाइंड, पी वाई मैट्रिक्स में p यहाँ पर प्री फैक्टर है एंड y इज द पोस्ट फैक्टर. तो पी वाई प्रोडक्ट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्री फैक्टर यानी कि p के जो कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर. यहाँ पर p के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दोज आर k एंड द नंबर ऑफ रोज फॉर y दैट इज 3. तो यहाँ से बिकॉज पी वाई इज डिफाइंड तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p नंबर ऑफ रोज ऑफ y के इक्वल होना चाहिए. तो वहां से हमारे पास एक और कंडीशन आई कि k एंड 3 बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स कि k की वैल्यू हो गई 3. तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ गई. सिमिलरली WY की कंडीशन अगर हम चेक करें तो WY प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा अगर प्री फैक्टर यानी कि W के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज फॉर पोस्ट फैक्टर Y. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन W वो क्या है 3 एंड नंबर ऑफ रोज इन Y इज ऑल्सो 3. तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि WY डिफाइंड है. बिकॉज फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पर क्या देखी कि ऑर्डर ऑफ PY इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ WY. तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि PY और WY का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं और उनको हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक और कंडीशन आएगी. नाउ PY का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब P के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड W की जो नंबर ऑफ रोज हैं ये दोनों हमने यूज कर ली कंडीशन में. बिकॉज P का ऑर्डर क्या था, वो था P क्रॉस K एंड Y का जो ऑर्डर था वो 3 क्रॉस K था. यहाँ से PY जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है, दैट इज वाई P के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड Y के जो नंबर ऑफ रोज हैं ये दोनों हमने कंडीशन सेटिस्फाई करने में यूज कर लिए. तो फॉर प्रोडक्ट PY टू बी डिफाइंड यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ P बचे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ Y बचे. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ PY. P क्रॉस K will be the order of PY. Now we have to find out the order of WY. WY के केस में W का जो ऑर्डर था वो था n क्रॉस 3 एंड Y का ऑर्डर हमें पता है 3 क्रॉस K है. यहाँ से बिकॉज WY प्रोडक्ट डिफाइंड है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन W एंड नंबर ऑफ रोज इन Y ये दोनों हमने यूज कर लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इन W बचा एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन K बचा. बोथ ऑफ दीज विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्डर ऑफ WY. तो हमारे पास जो WY का ऑर्डर आ गया n क्रॉस K. अब WY का ऑर्डर भी हमें पता चल गया, PY का ऑर्डर भी हमें पता चल गया, इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास थर्ड कंडीशन आएगी. तो ऑर्डर ऑफ PY वी गॉट इज P क्रॉस K एंड K की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो PY का जो ऑर्डर बना वो बना P क्रॉस 3. ऑर्डर ऑफ WY हमने फाइंड आउट किया वो आया n क्रॉस K एंड फ्रॉम दिस कंडीशन कि ऑर्डर ऑफ PY ऑर्डर ऑफ WY के इक्वल है तो PY का ऑर्डर अगर हम WY का ऑर्डर के इक्वेट करें यानी कि P क्रॉस 3 इज इक्वल टू n क्रॉस K. दो मैट्रिसेस का ऑर्डर तभी इक्वल हो सकता है अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन बोथ मैट्रिसेस आर सेम. दैट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज इन PY दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन WY यानी कि P की वैल्यू n आ गई एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन PY इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन WY यानी कि 3 इज इक्वल टू K. तो K, P और N
इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 एंड नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या आई कि p शुड बी इक्वल टू n। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास आ गई, p इज इक्वल टू n एंड k इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो कंडीशंस थी, जो भी गिवन कंडीशंस थी, उस कंडीशन को हमने यूज किया एंड प्लस जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने स्टडी किए थे, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट किए और उन रिजल्ट्स से हमने फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। So this was the last problem of today. Next we move towards the properties of matrix multiplication. Matrix multiplication हमने सीखा था कि दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उनकी कंडीशंस होती हैं। Now we are moving towards the properties of matrix multiplication. So the first property of matrix multiplication is non-commutative. If we have two matrices A and B, तो इन दोनों का जो एडिशन है यानी कि a प्लस बी एंड b प्लस ए, दो तरह से इन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव था, दैट मीन्स कि a प्लस बी वॉज इक्वल टू b प्लस ए। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैट्रिक्स एडिशन के केस में, वो थी एसोसिएटिविटी। मीन्स हमारे पास अगर 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, तो अगर इन तीनों का मैं एडिशन डिफाइन करूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए एडेड विद बी प्लस सी। तो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव थी। सिमिलरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है, यानी कि अगर मुझे इन 3 मैट्रिसेस ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है तो उसके 2 वेज हैं, या तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करें देन जो भी रिजल्टेंट आएगा उसे हम सी से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें, उससे जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग ले रहे हैं दोज प्रोडक्ट्स शुड बी डिफाइंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड कर देंगे। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दो तरह से हो सकता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स कि हम लेफ्ट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स कि हम जो भी मैट्रिसेस होगी उसको हम दो मैट्रिसेस के सम के साथ राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी हमें यही कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो भी सम ऑफ मैट्रिसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, दे शुड बी डिफाइंड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूनिट मैट्रिक्स। जैसे अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर हो 3, उस नंबर 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, सेम नंबर 3 आ जाएगा। या फिर मैं ऐसे करूं कि 1 को 3 से इस तरह से मल्टीप्लाई करूं, देन वी ऑब्टेन द नंबर 3 अगेन। तो सिमिलरली सिमिलर मैनर में हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स के केस में ये जो 1 है इट इज रिप्लेस्ड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 3 जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय अ जनरल मैट्रिक्स ए। तो ये दोनों नोटेशन है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये अलजेब्रा के केस में है एंड दीज टू नोटेशंस आर इन द केस ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के केस में भी एक जनरल मैट्रिक्स ए है, उसे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से या तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या फिर राइट से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द सेम मैट्रिक्स। नेक्स्ट थिंग इज अलजेब्रा में हम लोग पावर्स डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2 का स्क्वायर भी हम डिफाइन करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 8, 2 रेज़ टू पावर 1000। इस तरह से हम लोग पावर्स डिफाइन करते हैं एक नंबर की। सिमिलर मैनर में मैट्रिसेस के केस में भी एक आर्बिट्ररी मैट्रिक्स की भी पावर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे a स्क्वायर हो गया, a क्यूब हो गया एंड a रेज़ टू पावर 1000 भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट उसकी कंडीशन क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि a स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर
अलजेब्रा के केस में 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाइड विथ 2। सिमिलर मैनर में जो मैट्रिक्स ए है, ए स्क्वायर विल मीन ए मल्टीप्लाइड विथ ए। सिमिलर मैनर में मैट्रिसेस के केस में भी ए क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए। बट द कंडीशन हियर विच वी हैव टू रिमेंबर इज दैट ए शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो ये जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए एंड या फिर ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए रेज टू पावर 0 इज आइडेंटिटी। जैसे हम अलजेब्रा के केस में करते हैं कि एनी नंबर रेज टू पावर 0 दिस गिव्स मी 1। बिल्कुल सिमिलर मैनर में कोई भी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ए है उसकी पावर 0 करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आई रेज टू पावर n इज इक्वल टू आई। जैसे अलजेब्रा में हम करते हैं 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 की कोई भी पावर ले लो, 3 ले लो, 1 रेज टू पावर 2 ले लो, सबके केस में रिजल्ट 1 आता है। सिमिलर मैनर में जो मैट्रिक्सेस होती हैं उनके केस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी कोई भी पावर अगर मैं ले लूं n, दिस इज सेम एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स i, बट यहाँ पर जो n है दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ab is equal to ac, this does not imply b is equal to c always। जैसे अलजेब्रा के केस में हमारे पास इस टाइप की कोई कंडीशन बने कि 3a is equal to 3b, इस टाइप की इक्वेशन, तो यहाँ से हम लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं कि a शुड बी इक्वल टू b। यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड से एंड वी गेट a इज इक्वल टू b। बट मैट्रिसेस के केस में जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, तो यहाँ पर ab is equal to ac, it does not imply b is equal to c always। In general ab is equal to ac से हम लोग डायरेक्टली b is equal to c नहीं लिख सकते मैट्रिसेस के केस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं a, b एंड c, यहाँ पे अगर मैं ab मैट्रिक्स फाइंड आउट करूं एंड ac मैट्रिक्स फाइंड आउट करूं तो ab एंड ac मैट्रिक्स ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल। बट अगर हम मैट्रिक्स B देखें एंड मैट्रिक्स C देखें, दोनों मैट्रिसेस डिफरेंट है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस आर डिफरेंट। AB is equal to AC does not necessarily means B is equal to C always। The next thing is product of two matrices can be a null matrix while neither of them is a null matrix। जैसे अलजेब्रा के केस में अगर मैं बात करूं, जैसे x और y दो रियल नंबर्स हैं, मान लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो तो वहां से हम लोग क्या कहते हैं कि या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हमारे पास आती है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0 तो वहां से हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा, देन ओनली एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर x नॉन 0 हुआ और y भी नॉन 0 हुआ तो उस केस में एक्स वाई 0 नहीं हो सकता, यानी कि दो नॉन 0 नंबर से हमारे पास जीरो प्रोडक्ट नहीं आ सकता, ठीक है, अलजेब्रा के केस में। बट मैट्रिसेस के केस में ये पॉसिबल है। मैट्रिसेस के केस में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, लेट्स से दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ए मैट्रिक्स भी नॉन जीरो है एंड बी मैट्रिक्स भी नॉन जीरो है, बट फिर भी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A which is a non-zero matrix because all of its elements are not zero and we have a matrix B here which is also a null matrix। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले AB नल मैट्रिक्स आएगी। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि जो प्रोडक्ट है दो मैट्रिसेस जो कि नॉन जीरो है उनका प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। So this was all about the properties of matrix multiplication। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की इन प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि अलजेब्रा जैसी ही थी बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो अलजेब्रा से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। Now we move towards our next topic, that is the commutator bracket। If we have two matrices say A and B तो हम दो टाइप के प्रोडक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं AB and B and we know that in general AB is not equal to B। ये जो दो प्रोडक्ट मैट्रिसेस हमारे पास हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हमने नाम दिया है कॉम्यूटेटर।
तो दो मैट्रिसेस ए एंड बी का जो कॉम्यूटेटर होगा दैट मीन्स कि इन दोनों मैट्रिसेस से बने वाले जो भी दो प्रोडक्ट्स होंगे उनका डिफरेंस। तो दो टाइप के कॉम्यूटेटर यहाँ डिफाइन होते हैं। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी एंड बी ए, एंड इन दोनों का डिफरेंस भी हम टू टाइप से ले सकते हैं, या तो हम ए बी माइनस बी ए करें या फिर हम बी ए माइनस ए बी करें। ठीक है, तो ये जो ए बी माइनस बी ए है दिस इज नोन एज द कॉम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है उसमें ए पहले है एंड बी बाद में है, तो दैट इज वाई हमने इसका नाम रख दिया कॉम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। And this term BA minus AB, this is known as the commutator of B and A. That means कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में B पहले है एंड A बाद में है, इसके लिए हमने इसे commutator of B and A बोल दिया। तो commutator लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दो matrices लिखेंगे separated by comma and will enclose them in square bracket। ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस डिनोट्स कि हम ए और बी के कॉम्यूटेटर की बात कर रहे हैं। जिन भी दो मैट्रिसेस के कॉम्यूटेटर की हम बात करेंगे उन दोनों मैट्रिसेस को हमें हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर कॉम्यूटेटर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो मैट्रिसेस का कॉम्यूटेटर डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने दो मैट्रिसेस से दो प्रोडक्ट्स बनाए थे ए बी एंड बी ए, उसी तरह से हमने दो मैट्रिसेस से दो टाइप के कॉम्यूटेटर बनाए, कॉम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्यूटेटर ऑफ बी एंड ए। इन जनरल जिस तरह से ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, बिल्कुल सिमिलर मैनर में ए बी का जो कॉम्यूटेटर होता है दैट इज नॉट इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ बी ए। नाउ बिकॉज कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ बी ए, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? ए बी का जो कॉम्यूटेटर है वो हमने देखा ए बी माइनस बी ए, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, बी ए माइनस ए बी। एंड यहाँ पर बी ए माइनस ए बी हमें पता है इट इज द कॉम्यूटेटर ऑफ बी एंड ए, तो इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ बी एंड ए। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आया कि ए बी का जो कॉम्यूटेटर है दैट इज द नेगेटिव ऑफ कॉम्यूटेटर ऑफ बी ए। तो ए बी का कॉम्यूटेटर एंड बी ए का कॉम्यूटेटर बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड विद द नेगेटिव साइन। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज, हमने देखा कि हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हों ए एंड बी, देन उस केस में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स डिफाइंड होते हैं ए बी एंड बी ए, एंड इन जनरल वी नो दैट बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। बट कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें ए बी एंड बी ए बोथ बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो इस टाइप से जब ये स्पेशल केस बनता है कि ए बी बी ए के इक्वल हो, देन वी से दैट द टू मैट्रिसेस ए एंड बी कॉम्यूट विद ईच अदर। तो दो मैट्रिसेस ए एंड बी एक दूसरे से कॉम्यूट कब करेंगी, अगर उन दोनों से बनने वाले जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों इक्वल हो जाए। तो ए बी अगर बी ए के इक्वल हो जाए then we say that two matrices A and B from which these products are made, both these matrices are commuting with each other. तो because AB BA के equal है, ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं एक और तरह से कह सकती हूँ in terms of commutator bracket. AB का जो commutator bracket है that is defined like this, AB minus BA. Now वो स्पेशल केस जिसमें A and B commute करेंगे, अगर ए और बी कॉम्यूट करते हैं देन ए बी बी ए के इक्वल होगा। दिस मीन्स कि ए बी का जो कॉम्यूटेटर होगा दिस बिकम्स जीरो। तो ए बी का कॉम्यूटेटर जीरो है, दिस इंप्लाइज कि ए एंड बी बोथ मैट्रिसेस कॉम्यूट विद ईच अदर। तो दो मैट्रिसेस एक दूसरे से कॉम्यूट करती हैं, इसको कहने के दो तरीके हैं कि या तो दोनों से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ए बी एंड बी ए दोनों इक्वल हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि ए बी का कॉम्यूटेटर जीरो है। बोथ ऑफ दीज विल मीन दैट ए एंड बी कॉम्यूट विद ईच अदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए इस तरह से है एंड मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ से हमने ए बी भी फाइंड आउट किया, बी ए भी फाइंड आउट किया। तो ए बी एंड बी ए फाइंड आउट करने के बाद हमने ये देखा कि ए बी एंड बी ए बोथ आर इक्वल। ठीक है, ए बी बी ए के इक्वल है, तो वहां से हमने ये कहा कि ए एंड बी बोथ द मैट्रिसेस कॉम्यूट विद ईच अदर। ये था कॉम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट कि दो मैट्रिसेस कॉम्यूट कब करेंगी, अगर उनका कॉम्यूटेटर जीरो हो
या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस के जो दो प्रोडक्ट्स होंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए, देन ओनली बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस विल कम्यूट विद ईच अदर। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है एंड वी हैव अ मैट्रिक्स सी, ए और बी का कॉम्यूटेटर हम फाइंड आउट करें और वो 0 आए एंड साइमल्टेनियसली बी एंड सी का कॉम्यूटेटर भी 0 हो, देन व्हाट अबाउट द कॉम्यूटेटर ऑफ ए एंड सी? ए एंड सी का कॉम्यूटेटर क्या होगा? विल इट बी इक्वल टू 0? नो, ए सी का जो कॉम्यूटेटर है वो हर केस में 0 हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। ए सी का कॉम्यूटेटर 0 भी हो सकता है एंड नॉन 0 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी कि अगर ए बी के साथ कॉम्यूट करता है, इफ ए कॉम्यूट्स विद बी, दिस मीन्स कि ए बी का कॉम्यूटेटर 0 है एंड बी कॉम्यूट्स विद सी, साइमल्टेनियस कंडीशन ये दी गई है कि बी और सी दोनों कॉम्यूट करते हैं, दैट मीन्स कि बी सी का कॉम्यूटेटर भी 0 है। तो इन दोनों कंडीशन से इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू दैट ए कॉम्यूट विद सी, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ए एंड सी का कॉम्यूटेटर भी 0 ही आएगा। इन जनरल ए सी का कॉम्यूटेटर नॉन 0 भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है, अगर मेरे पास ये दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती हैं तो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। तो इस केस में अगर मैं ए बी एंड बी ए दो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करूं, तो इस केस में मैंने ये देखा कि ए बी एंड बी ए बोथ आर इक्वल, दिस मीन्स कि ए बी का जो कॉम्यूटेटर है वो 0 है, इट मीन्स कि ए जो है वो बी के साथ कॉम्यूट करता है, देन ओनली बी ए बी के इक्वल आया। नेक्स्ट थिंग, हमने बी सी और सी बी निकाला, तो हमने ये देखा कि बी सी इज इक्वल टू सी ए, सॉरी बी सी इज इक्वल टू सी बी, दिस मीन्स कि बी एंड सी ये दोनों भी कॉम्यूट करते हैं। फिर हमने ए और सी का कॉम्यूटेटर देखना चाहा, तो हमने ए सी और सी ए फाइंड आउट किया। यहां से हमने देखा कि ए सी एंड सी ए बोथ आर नॉट इक्वल, दिस मीन्स कि ए एंड सी डज नॉट कॉम्यूट विद ईच अदर। तो अगर ए एंड बी एक दूसरे के साथ कॉम्यूट करते हैं एंड बी कॉम्यूट्स विद सी, both of these condition does not mean that A is commuting with C always. Next we have anti-commutator bracket. हमने देखा था कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं AB and BA for two matrices A and B. तो AB and BA both are not equal in general. तो हमने क्या किया, AB minus BA, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस डिफाइन कर दिया as commutator of A and B. ठीक है। अब अगर मैं ये टर्म लिखूं कि ए बी प्लस बी ए, इस टर्म को भी हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज एंटी कॉम्यूटेटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस ए एंड बी। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉम्यूटेटर ब्रैकेट डिफाइन किया, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए बी माइनस बी ए। सिमिलर मैनर में हमारे पास एक और ब्रैकेट होता है, दैट इज एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, एंड एंटी कॉम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, ए बी का एंटी कॉम्यूटेटर हम लोग डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस में। ए बी का जो कॉम्यूटेटर है उसे हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जबकि एंटी कॉम्यूटेटर विल बी रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस। तो ए बी का जो एंटी कॉम्यूटेटर होगा दैट इज डिफाइंड एज ए बी प्लस बी ए। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं दैट मीन्स कि वी आर डिफाइनिंग द कॉम्यूटेटर, यानी कि ए बी माइनस बी ए डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर यूज करते हैं, दिस मीन्स कि हम एंटी कॉम्यूटेटर यूज कर रहे हैं, यानी कि हमें ए बी प्लस बी ए करना है। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द ऑपरेशंस। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऑपरेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, लेट्स से दैट मैट्रिक्स भी बी। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं जिनमें हम एक मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशंस अप्लाई करें तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, इस टाइप के ऑपरेशंस हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। मैट्रिक्स ए में हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, देन हमें मैट्रिक्स बी मिली, तो दिस मैट्रिक्स बी इज नोन एज डिराइव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो किस तरह से एक गिवन मैट्रिक्स से हम एक नई मैट्रिक्स बना सकते हैं, वो ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
तीन तरह के ऑपरेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑपरेशन एंड हर्मिशन कंजुगेशन ऑपरेशन। तीनों ऑपरेशंस में हम लोग उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और किस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को डिराइव कर सकते हैं, किस तरह से इन ऑपरेशंस को हम लोग डिनोट करेंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज द ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होगा? ट्रांसपोजिशन मींस पोजीशन को चेंज करना। किसकी पोजीशन चेंज करनी है? मैट्रिक्स किससे बनी होती है? रोज और कॉलम से। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स और हमें पोजीशन चेंज करनी है। किसकी पोजीशन चेंज करेंगे? रोज एंड कॉलम्स की। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है लेट्स से, और इसमें कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ कॉलम्स होंगी। तो अगर मैट्रिक्स ए की रोज और कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर दे, रोज और कॉलम्स की पोजीशन को चेंज कर दे, देन this operation is known as transposition operation. So now we will discuss a few points about transposition operation. First point is transposed matrix. तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हुई? एक ऐसी मैट्रिक्स जो कैसे ऑब्टेन होगी? हमारी जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और जो नंबर ऑफ रोज होंगी उनको इंटरचेंज कर देंगे, देन वी विल गेट द न्यू मैट्रिक्स विच विल बी नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, इट विल बी डिनोटेड एज दिस, A to the superscript T. Now to find out the transposed matrix, what we will do is, let's take an example. If we have a matrix A like this 1 2 3 0 0 4, तो इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिखनी है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन मींस कि ए की जो भी रोज होंगी उन्हें हम कॉलम्स बना दें, ठीक है? या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि ए की जो भी कॉलम्स होंगी उन्हें हम रोज बना दें। कैसे? जैसे फर्स्ट रो ऑफ ए है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है? सेकेंड रो ऑफ ए इज 0 0 4। तो हम क्या करेंगे, जो ए की रोज होंगी उनको हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे, उसकी कॉलम्स बना देंगे। दैट मीन्स कि फर्स्ट रो ऑफ ए विल बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज एंड द सेकेंड रो ऑफ ए विल बी द सेकेंड कॉलम ऑफ द ए ट्रांसपोज। इस तरह से हमारे पास जो भी मैट्रिक्स बनेगी, दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए की जो भी रो होगी उसे हमने ए ट्रांसपोज की कॉलम बना दिया एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रोज और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स को हमें इंटरचेंज करना है, यानी कि जो फर्स्ट रो होगी ए की, दिस विल बिकम द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड रो ऑफ ए विल बिकम द सेकेंड कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट इज ऑर्डर, यानी कि जो भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें मिली उसका ऑर्डर क्या होगा? इफ ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए का जो ऑर्डर होगा वो होगा n क्रॉस m, क्योंकि हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए। दैट मीन्स कि ए की जो रोज थी जो कि m थी उसे हमने ए ट्रांसपोज का कॉलम बना दिया, ठीक है? एंड ए की जो कॉलम है उसे हमने ए ट्रांसपोज का रो बना दिया। दिस इज व्हाई द ऑर्डर गेट्स रिवर्स। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, इस एग्जाम्पल में ए का जो ऑर्डर है दैट इज 2 क्रॉस 3 एंड ए ट्रांसपोज का ऑर्डर अगर हम देखें तो इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर रिवर्स हो गया, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 एंड ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो गया, बिकॉज वी हैव इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट थिंग इज ijth एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ ए। इसे हम फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स ए लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5 6। तो इस तरह से हमने ए ट्रांसपोज लिख दिया, जिसमें हमने क्या किया, जो फर्स्ट रो थी ए की उसे हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया एक मैट्रिक्स का, फिर जो सेकंड रो थी ए की उसे हमने सेकंड कॉलम बनाया एंड जो थर्ड रो थी उसे हमने थर्ड कॉलम बनाया एंड द मैट्रिक्स विच वी गेट we name this as transpose of A। तो यहाँ पर ट्रांसपोज लेने से एलिमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। उसे देखने के लिए फॉर एग्जांपल हमने A to 1 एलिमेंट लिया A का A to 1 एलिमेंट क्या है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता हो। सेकेंड रो
एंड फर्स्ट कॉलम। तो 3 जो है दिस इज द A21 एलिमेंट ऑफ A एंड व्हाट इज द A12 एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज, यानी कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाया करता है, दैट मीन्स कि दिस एलिमेंट। तो क्या हुआ कि जो A21 एलिमेंट था A का, दिस बिकम्स द A12 एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इस एलिमेंट को देखें, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। 5 is the A31 element of A and 5 is the A13 element of A transpose। तो इस तरह से सेकंड जो एलिमेंट है यानी कि 5 एलिमेंट है, उसमें भी हमने देखा कि A31 एलिमेंट ऑफ A इट बिकम्स द A13 एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने से एलिमेंट्स पे ये इफेक्ट पड़ता है कि ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज जो होगा वो jith एलिमेंट ऑफ A से मैच करेगा। नेक्स्ट थिंग इज मैथमेटिकली हम किस तरह से A और A ट्रांसपोज को डिनोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसे हम Aij m क्रॉस n इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देन A ट्रांसपोज में कौन सा एलिमेंट होगा? अगर A का एलिमेंट है Aij तो A ट्रांसपोज का जो एलिमेंट होगा वो Aji होगा। क्यों? बिकॉज ijth एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज द jith एलिमेंट ऑफ A। तो अगर A का एलिमेंट Aij है तो A ट्रांसपोज का जो जनरल एलिमेंट होगा वो होगा Aji। नेक्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी कि A का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n होगा तो A ट्रांसपोज के लिए हम जो ऑर्डर लिखेंगे वो n क्रॉस m होगा। तो if there is a matrix A which is represented like this, then we'll denote A transpose as this matrix। तो अगर इन जनरल हम देखें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और उस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन में अप्लाई करती हूँ, यानी कि इस मैट्रिक्स A के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देती हूँ, तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स बनती है विच इज नोन एज A ट्रांसपोज एंड इस न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी n क्रॉस m। तो जैसे ये एक और एग्जाम्पल है 2308, हमने क्या किया यहाँ पर A मैट्रिक्स थी उसके लिए A ट्रांसपोज लिखना था, तो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो है 2 3, ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया A ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम बना दिया एंड द सेकेंड रो 08 इट बिकम्स द सेकेंड कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, या तो हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों तरह से हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे जितने भी एग्जांपल्स हमने अभी लिए उसमें हमने क्या किया, ए की रोज को हमने ए ट्रांसपोज के कॉलम्स बना दिए एंड वी कैन टेक इट वाइस वर्सा आल्सो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है ए का 1 3 5, दिस फर्स्ट कॉलम ऑफ ए कैन बी expressed as first row of A transpose 1 3 5 एंड जो सेकेंड कॉलम है A का उसे हम सेकेंड रो ऑफ A ट्रांसपोज बना देते हैं। देन अगेन वी गेट द सेम रिजल्ट एज वी हैव ऑब्टेन्ड अर्लियर। इसी में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक कॉलम मैट्रिक्स की जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वो एक रो मैट्रिक्स आएगी एंड वाइस वर्सा। इसे हम फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स B लाइक दिस 1 2 and 3, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देखें तो इट इज 3 क्रॉस 1 एंड दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। व्हाई? क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है एंड दिस मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन कॉलम, दैट इज व्हाई इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब मुझे B ट्रांसपोज लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, B ट्रांसपोज लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसे मैं रो बना दूंगी। एक ही कॉलम है इसमें, इस कॉलम को अगर मैं रो बना दूं एंड वी एनक्लोज इट इन ब्रैकेट्स तो मेरे पास B ट्रांसपोज इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम था तो उस एक कॉलम को मैंने इस एक रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स बनी दिस इज नोन एज B ट्रांसपोज एंड अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं तो इट इज 1 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, दैट मीन्स कि इट इज अ रो मैट्रिक्स। तो यहां से हमने ये देखा कि एक कॉलम मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो एक रो मैट्रिक्स बनेगी। सिमिलरली अगर रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी।
इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ वी हैव अ मैट्रिक्स P लाइक दिस, तो यहाँ पर P मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा इट इज 1 क्रॉस 3 बिकॉज इट हैज ओनली 1 रो. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दीज आर रोज एंड दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स. ठीक है, तो P हमने मैट्रिक्स लिखी 1 क्रॉस 3, इट हैज ओनली 1 रो, दैट मीन्स इट इज अ रो मैट्रिक्स. नाउ अगर मुझे अब P का ट्रांसपोज लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, ये जो एक रो है हमारी उस रो को मैं कॉलम बना दूंगी. ठीक है, तो 1 2 3 दिस रो विल बी लाइक दिस. इस तरह की जो मैट्रिक्स है जिसमें हमने क्या किया, P ट्रांसपोज लिखने के लिए हमने क्या किया, ये जो P की एक ही रो थी उसे हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. तो नाउ अगर हम P ट्रांसपोज की ऑर्डर देखते हैं तो दिस विल बी 3 क्रॉस 1. नाउ दिस मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, दैट मीन्स दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो यहाँ से हमने फिर से ये देखा कि एक रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी एंड एक कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर रो मैट्रिक्स मिलेगी. So this was about the transpose of the matrix. In this lecture, what we have discussed is, we discussed some of the questions related to the concepts which we have discussed in the previous lecture. Then we move towards the properties of matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी जिसमें हमने ये देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज तो अलजेब्रा से सिमिलर हैं बट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द कॉम्यूटेटर ब्रैकेट. जो दो प्रोडक्ट्स थे हमारे पास ए बी एंड बी ए फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, उनके डिफरेंस और एडिशन से हमने दो ब्रैकेट्स डिफाइन की, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट एंड एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट. और हमने ये भी देखा कि ऐसी क्या कंडीशन होगी जब हम कहेंगे कि दो मैट्रिसेस ए एंड बी कॉम्यूट विद ईच अदर. नेक्स्ट वी ऑब्टेन द ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन. हमने कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किए. एक मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने से हमें एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगी विच विल बी नोन एज डिराइव्ड मैट्रिक्स. यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑपरेशन स्टडी किया, ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, किस तरह से उसे हम डिनोट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर और एलिमेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, एंड एग्जाम्पल से हमने समझा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड फर्दर जो दो ऑपरेशंस लेफ्ट हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ऑपरेशन एंड हर्मिशियन कंजुगेशन ऑपरेशन, ये दोनों डिस्कस करेंगे विद देयर प्रॉपर्टीज. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून्ड.